Welcome back students to standard 10th chemistry chapter 4 carbon and its compound, and we are in the 9th session. All right children, well, when, how and what are formed. In that we have seen esterification reaction, oxidation, correct? Oxidation of alcohol gives aldehyde, oxidation of alcohol also gives organic acid, oxidation of aldehyde gives organic acid, oxidation of ketone also gives organic acid, reduction of aldehyde gives alcohol, and reduction of ketone also gives alcohol. This is what we have seen. Then we have seen reduction reaction 2. Now we are going to see addition reaction and substitution reaction. The name itself suggests that something is added. Something, yeah, the reactant is added. Second reactant is added to the first reactant. So something is added. Here also the name suggests something is substituted. Something is substituted. All right. Substituted. Okay. Let's see the addition reaction. Children, what you are going to take here? Alkene. आप alkene ले लो जिसमें डबल बॉन्ड है, राइट, एंड देन ऐड द रिएक्टेंट. ये आपका रिएक्टेंट 1 है एंड रिएक्टेंट 2 आप उसको उसके साथ रिएक्ट करो. ऑलराइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ निकल. ऑलराइट, एंड यू गेट सिंगल बॉन्ड कंपाउंड. You get single bond compound. That's it. Okay. So this reactant is going to be added to the first reactant. All right. Let's take the example of double bond wala ethene. Let's take ethene. C double bond C. Ethene means number of carbon atom is 2. And then we have hydrogen. Correct children? Each carbon atom will have 4 bonds. So this is ethene. I'm adding hydrogen. उसमें हाइड्रोजन ऐड करने वाला हूं in presence of nickel as catalyst. Children, क्या होगा? The double bond is going to break and we will have single bond. C और C के बीच single bond. All right? और यस, 2 और बॉन्ड होंगे, हर एक कार्बन के 4. ये 2 हाइड्रोजन मैंने यहां दे दिया, ये 2 हाइड्रोजन मैंने यहां दे दिया, और 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गए, उसको यहां दे दिया. सो दिस इज इथेन. सो सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड के बीच. यहां क्या हुआ? हाइड्रोजन इज एडेड. सेकेंड रिएक्टेंट पहले रिएक्टेंट में पूरा समा गया. करेक्ट चिल्ड्रन? So यही चीज याद रखना. दिस इज व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर इन एडिशन रिएक्शन. आपको डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेना होगा, सेकंड रिएक्टेंट उसमें ऐड हो जाएगा. करेक्ट? ओके. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाला, एंड दैट इज प्रोपेनॉन. ऑलराइट, प्रोपेनॉन आपको पता है क्या? C डबल बॉन्ड O. करेक्ट? और यहां CH3. Did you get that formula? Propanone, that means ketone. Ketone में C double bond O होता है, CO. Actually we write CO. That is the functional group. लेकिन O और C के बीच डबल बॉन्ड होता है. So that is what I have written, C double bond O. और प्रोपेन है तो N equal to 3, तो आपको 3 कार्बन चाहिए. इसको राइट में 1 कार्बन दे दिया तो 1 ही बचा, लेफ्ट में 1 कार्बन के साथ, एंड में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं. करेक्ट चिल्ड्रन? ओके. हियर दिस इज द फर्स्ट रिएक्टेंट. सेकंड रिएक्टेंट आई एम गोइंग टू टेक इज हाइड्रोजन साइनाइड. आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन साइनाइड. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें क्या मिलेगा? चिल्ड्रन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑलराइट, ओके, वो O रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये भी CH3 रहेगा. नाउ बी केयरफुल, ये H ये O में जुड़ जाएगा. करेक्ट?
और ये CN यहां नया बॉन्ड बनाएगा. सो हाइड्रोजन और साइनाइड दोनों इसमें समा गए हैं. इज दैट क्लियर टू यू? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन cyanohydrine. Propane cyanohydrine. So here are the two examples of addition reaction. Is that clear, children? Moving on to the next one, and that is substitution reaction. Children, वो बड़ा आसान है. अल्केन ले लो, कोई भी अल्केन, n equal to 1 मीथेन या n equal to 2. Okay? Yes. Now, there you treat with halogen, chlorine. So chlorine will substitute hydrogen. All right? And yeah, substitution will take place. और आपको प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 मिलेगा. All right? Let's see. We'll take example of methane. Methane. So you have n equal to 1, वही एक और 4 सिंगल बॉन्ड. सो दिस इज मीथेन CHO. आप ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, हेलोजन के साथ. ऑलराइट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वो जरूरी है. ऑलराइट, सो इट गिव्स यू चिल्ड्रन एक क्लोरीन ये हाइड्रोजन के साथ रिमूव किया, सब्स्टिट्यूट किया. सो व्हाट यू हैव, ये 3 हाइड्रोजन बचे और एक क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन, और एक क्लोरीन बचा, वो निकला हुआ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करता है. सो आपको 2 प्रोडक्ट मिला. सो व्हाट हैज हैपेंड, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन, एंड वही निकला हुआ हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड करता है. यू कैन टेक n equal to 2 carbon, that is C2H double plus 2, 8. Okay, this is ethane. उसमें आप ब्रोमीन ऐड कर दो, Br2. ऑलराइट, तो C2H7 एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दिया, प्लस यस जो हाइड्रोजन निकला वो ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस फॉर्म करेगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. n equal to 3, that is propane C3H double plus 2, so 8. All right, let's take fluorine F2, that is halogen. Okay, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 7 बचेगा, C3H7, and fluorine is substituted, and removed hydrogen reacts with fluorine to produce HF, hydrogen fluoride. Okay, so this is how substitution reaction takes place. So we have completed most of the chemical reactions of this chapter, right? So when, how and what are formed. Now we are going to learn about 2 important organic compounds. Actually, there are many important organic compounds, but in this chapter we are going to learn about 2 important organic compounds. One is ethanol, very important alcohol. All right, and the second is organic acid. The very important organic acid is ethanoic acid. Yes, जो अल्कोहल, इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें n equal to 2 है, right? If n equal to 2, then it is associated with ethane. अब E निकालो और all लगा दो, so that is ethanol. All right, let's see the properties and uses of ethanol. All right, ethanol is a liquid at room temperature. At room temperature, ethanol is always found in liquid state. Okay, children, the melting point of ethanol is 156 Kelvin and boiling point of ethanol is 351 Kelvin. Okay. Now this ethanol is commonly called alcohol. उसे alcohol ही बोलते हैं. Why?
because it is active ingredients of all alcoholic drink. सारे अल्कोहलिक ड्रिंक में ये इंग्रेडिएंट होगा ही होगा, राइट? सो इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, उसे अल्कोहल ही बोल देते हैं, राइट? नेक्स्ट, सो हियर चिल्ड्रन आपको लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टी मिली, यहां यूज मिला, करेक्ट? इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक. Our title is properties and uses of ethanol. Okay, next. In addition, because of good solvent, a property, it dissolves many of the substances. It is also used. So here use aa gaya. Used property is what? It is excellent solvent. It is good solvent. And what is the use? It is used in medicines such as tincture iodine, cough syrups, and many tonics. Now this tincture iodine, when you get hurt, when you get wound, and if the blood is flowing, once the blood stops flowing, to cure the wound, this is applied at the place of wound. All right? Yes, it gives a very burning sensation. Cough syrups, you know, and many tonics. Children, cough syrups में थोड़ा सा इथेनॉल होता है ताकि you feel giddiness, आपको नींद आ जाए. And once you get good sleep, yes, it gives you relief in cold and coughs. All right. And many tonics also. That gives you rest. आपको sleepiness लगती है और आप सो जाते हैं, आपको आराम मिलता है. So, yes, your body is recharged with energy. Next, ethanol is also soluble in water. Yes, वो दूसरी चीज खुद को दूसरी चीजों को अपने आप में डिसॉल्व करता है, सो दैट इज सॉल्वेंट, बट इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल. ऑलराइट. नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस. ओके, आपको यस टिप्सी टॉप्सी बना देता है. ऑलराइट. लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. Children, we have seen harmful effect of alcohol. वही चीज है. All right. Now let's see its properties, children. Reaction of ethanol with sodium. We have already seen this. Okay. Let's take ethanol. That is OH is the functional group. N equal to 2 क्योंकि इथेन है तो ये 2 लगा दो कार्बन, दूसरे वाले से H2, पहले वाले से H3. This is ethanol. You are going to react with sodium. So that is Na. Now what is happening, children? Yes, this hydrogen is removed. ये हाइड्रोजन निकल जाता है in the form of H2. Alright? और उसी का प्लेस ले रहा है Na. So here nothing substitution is taking place. यह सब्सटीट्यूशन ही हो रहा है. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? CH3 CH2 ONA. ऑलराइट. इतना पार्ट, ये सोडियम वाला पार्ट पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव पार्ट होता है. रिएक्शन मतलब दिस इज आयनिक कंपाउंड, नॉट कोवेलेंट कंपाउंड. ऑलराइट चिल्ड्रन. और इसे कहते हैं सोडियम. सोडियम सोडियम है तो सोडियम और 2 कार्बन है, सो इथेन. इथेन. ओके. लेकिन ANE, इथेन का ANE रिमूव करते हैं और लिखते हैं ऑक्साइड. सो दिस विल बी सोडियम इथॉक्साइड. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? यदि आप प्रोपेन ले लेते हैं तो OH फंक्शनल ग्रुप, एक. ओके. 3 कार्बन रहेंगे, राइट, प्रोपेन में. तो 1 2 और 3, पहले वाले से H3 H2 H2 प्लस सोडियम लगा रहे हैं. ये सोडियम हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला है, सो CH3 CH2 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. करेक्ट. ओके. नाउ इसका नाम 1 2 3 सोडियम पीछे है तो फर्स्ट यू राइट सोडियम और 3 कार्बन, सो प्रोपेन. प्रोपेन से एसोसिएटेड है, लेकिन यहां ENE निकाल के ऑक्साइड, सो प्रोपॉक्साइड. प्रोपॉक्साइड. करेक्ट. दैट इज फॉर्म. ऑल राइट.
Now, getting unsaturated hydrocarbon from ethanol. All right, unsaturated मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहां डबल बॉन्ड वाला मिलता है आपको फ्रॉम इथेनॉल. सो इथेनॉल की फॉर्मूला क्या है? OH जो फंक्शनल ग्रुप है और N इक्वल टू 2, सीधा मैं लिख देता हूं C2H डबल प्लस 1 pi. All right, this is done in presence of concentrated sulfuric acid H2SO4. Okay, and you get ethanol है, so you get ethene plus water is obtained. Children, अब इथिन में C डबल बॉन्ड C होता है, यहां H2 लगा दो, यहां H2. चिल्ड्रन एक एक H कम है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? सो दिस इज obtaining unsaturated hydrocarbon from ethanol. Is that clear? That's it. Okay, so properties and uses, these are the two chemical properties of ethanol. Yes, moving on to second important organic compound, and that is ethanoic acid. So कौन सा एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड? यस, N इक्वल टू 2 वाला इथेन और इथेनोइक एसिड. Let's see the properties and uses of ethanoic acid first. Ethanoic acid is commonly called acetic acid. Yes, N equal to 2, so that acid is associated with it, and belongs to a group of acids called carboxylic acid. We know ethanoic acid में ये functional group होता है COOH, उसको कहते हैं carboxylic functional group, carboxylic group of acids. Okay. 5 to 8% solution of acetic acid in water. आप स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड लो, पानी में डिसॉल्व करो और 5 to 8% सॉल्यूशन बनाओ. दैट इज कॉल्ड एसिटिक, दैट इज कॉल्ड विनेगर. उसे विनेगर कहते हैं, सरका. एंड वी यूज दैट विनेगर इन यस पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, ऑल्सो इन सलाड्स, ग्रीन सलाड्स. ऑलराइट, खास करके अनियंस में डालते हैं. ओके, चलिए. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Hence, it often, this is low, which is low. All right, melting point is low. So, during the winter, in cold climatic conditions, it freezes. वो freeze हो जाता है, जैसे पानी आइस हो जाता है, वैसे yes, this liquid also turns into solid. That's why it has earned the name glacial acetic acid. Glacial मतलब solid. Okay, fine. So that's all about properties and uses of ethanoic acid. Now we shall see esterification. Children, आपने already देखा है esterification, correct? क्या देखा है esterification में? Yes, पहले acid, फिर alcohol, and that gives ester plus water. ये रिएक्शन देखा है. चलिए, N इक्वल टू 2 वाला एसिड, N इक्वल टू 2 वाला अल्कोहल ले लेते हैं. चलिए, एसिड कौन सा? एसिड, सो COOH, और अल्कोहल सो OH. लेट्स राइट द फॉर्मूला. COOH ले लिया, N इक्वल टू 2, तो अब 2 ले लो, तो एक ऑलरेडी है, सो एक ही लेना है, और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन. ऑलराइट, प्लस नाउ यू आर गोइंग टू टेक अल्कोहल, so functional group is OH, correct children? And yes, number of carbon atom 2, इसमें कोई भी नहीं है, तो दोनों लिख लो, C2 और H double plus 1 5. All right, it gives you what? Let's see. Okay, now this reaction takes place in presence of acid, or it is reversible reaction as well. चलो, what is happening children? आपको यहां से और यहां से जो अल्काइल ग्रुप है वो उठाना है. CH3 पहले, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो, C2H5, और बीच में जो ईस्टर ग्रुप आएगा COO. ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप के बीच रिएक्शन होके एक फंक्शनल ग्रुप ईस्टर प्रोड्यूस हुआ, इसको कहते हैं ईस्टर. ऑलराइट, एंड हाइड्रोजन बचा, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है. सो दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर टू यू?
Now we are going to see reaction with base. All right, चलिए, यस हमें तो इथेनॉइक एसिड ही लेना है, करेक्ट. सो इथेनॉइक एसिड वही लेना है, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं. और बहुत पॉपुलर बेस है वो NaOH. तो क्या देता है, लेट्स सी. ओके, तो लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चरली. C2 डबल बॉन्ड O, करेक्ट. OH, हाइड्रोजन. ओके, दिस इज COOH. ओके, यहां 5 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, करेक्ट. कार्बन के 2, 3 और 4. COOH फंक्शनल ग्रुप एंड CH3 COOH स्ट्रक्चरली लिखा, और NaOH. All right. Now what it is going to give you, children? It's going to give you ethanol. Remember, ethanol will be one product, plus it's going to give you sodium acetate. All right. चलिए, let's see how we are getting it. इथेनॉल की फॉर्मूला तो आपको पता है, कार्बन एटम्स 2, हाइड्रोजन डबल और 5, और अल्कोहल OH. All right. Now sodium acetate. Acetate means again N equal to 1. Here, sorry, 2. Here N equal to 2 ethanol में. So you will have CH3. All right. और ईस्टर एसिटेट मतलब ईस्टर, COO, 2 कार्बन हो गया, और Na, सोडियम एसिटेट. These are the 2 products that are produced. You will have to remember. All right. It produces alcohol plus sodium acetate. Alcohol भी इथेनॉल, क्योंकि yes, number of carbon atom is 2. Okay, चल. Now the reaction of carbonates and hydrogen carbonates. Okay, so now ethanoic acid plus carbonate, what does it give? Sodium acetate. So sodium carbonate लेना होगा, acetate plus water plus carbon dioxide. और आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, in place of carbonate, if you take hydrogen carbonate, still you will get the same. Okay, children? Sodium acetate, water and carbon dioxide. So let's take ethanoic acid. COOH, acid functional group. Ethane, number of carbon atom 2, एक ऑलरेडी आ गया, एक बच गया, CH3. आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, Na वाला. So sodium is Na plus 2, carbonate is CO3 minus plus 1, and this is minus 2. So the formula is Na2, right, and CO3 ones. And what it gives? Yes, मैंने बता दिया, सोडियम एसिटेट. ओके, एसिटेट में फंक्शनल ग्रुप है COO, क्योंकि ईस्टर है, और सोडियम आगे लगा देते हैं, और एसिटेट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, एक ऑलरेडी है, सो एक लगा देते हैं, और CH3. ऑलराइट, फिर क्या मिला? वाटर, दैट इज H2O, एंड देन व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. लेटर यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम इज Na plus 1 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 minus 1. सो सीधा ज्वाइन होगा. सो पहले इथेनॉल इथेनोइक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, दैट यू मे राइट डायरेक्टली नाउ. और क्या होगा? NaHCO3. Now this gives you the same thing. Sodium acetate. Alright, acetate में functional group COO और सोडियम लिख दो. Acetate, so number of carbon atom 2, 1 is already there. एक और लिखो, उसके साथ H3 plus water plus carbon dioxide. Is that clear, children? I hope that is clear to you. Okay, children? Now, all that we learnt, how to remember, children. Let's see, children. Let's see.
आपको कैसे याद रखना होगा। ऑलराइट, हमने पहले फर्स्ट वी लर्न अबाउट कंबशन ऑफ अल्कोहल। कंबशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल ले लो कोई भी, उसको कंबशन करो, सो प्लस O2, what we are doing, combustion. So what it gives, carbon dioxide and water. अब यहां एग्जाम्पल कौन सा ले हम लोग, या n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, करेक्ट, कोई भी ले लो। तो वो क्या होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 वाला, सो CH3 CH2OH प्लस O2, कंबशन हो रहा है, करेक्ट, इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर आपको बैलेंस करना है, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, यू बैलेंस दैट इक्वेशन। सो वन एग्जांपल लाइक दैट, यू कैन हैव मोर एग्जांपल्स। ऑलराइट चिल्ड्रन, सेकंड हमने क्या रिएक्शन देखा था चिल्ड्रन, अल्कोहल प्लस सोडियम, यहां कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, राइट, क्या मिलता है, ओके, कौन सा अल्कोहल लोगे आप, सो यू विल टेक n इक्वल टू कोई भी ले लो, 1 2 3, चलिए मैं 3 वाला ले लेता हूं, 3 वाला, सो C3 सीधा लिखा, शॉर्ट फॉर्म कंप्रेस फॉर्म लिख रहा हूं, H7 और OH, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड इट इज सब्स्टिट्यूटिंग, सो C3H7ONa एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आउट। ऑलराइट, सो ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा, करेक्ट। नाउ नंबर 3 व्हाट वी सॉ, एस्टरिफिकेशन। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो उसमें बेस्ट एग्जांपल क्या लोगे, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। एसिड लिखो पहले, फिर अल्कोहल लिखो एंड यू गेट ईस्टर प्लस वाटर। ये आपको याद रखना होगा, जो ग्रीन है वो बेसिक्स है, जो ब्लैक में मैं लिख रहा हूं वो एग्जाम्पल कौन सा लेना है, और रेड में वही एग्जाम्पल ले लिया। ये एसिड n इक्वल टू 2 वाला लो और ये अल्कोहल n इक्वल टू 2 वाला लो, करेक्ट। चलिए तो हम देखते हैं रिएक्ट एग्जाम्पल। एसिड में फंक्शनल ग्रुप COOH है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, एक ऑलरेडी आ गया, एक बच गया CH3, प्लस अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, एक भी नहीं है, सो दोनों लिख दो, C2H उसका डबल 4 और प्लस 1 5, ओके। हियर एस्टरिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, एस्टरिफिकेशन, ऑलराइट, ओके। आपको क्या मिल रहा है, ईस्टर। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप बीच में ईस्टर का लिख रहा हूं, ऑलराइट, और ये अल्काइल ग्रुप लेफ्ट में लिख रहा हूं और ये अल्काइल ग्रुप राइट में लिख रहा हूं, ऑलराइट, एंड प्लस H2O, पानी मिलता है, यू हैव सीन दैट। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पीछे से नेमिंग, 2 कार्बन वाला, सो इथाइल, और बचे 2 कार्बन, सो एसीटेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट, okay children। After that we learnt 4th reaction and it was about oxidation, all right। और किस किस का ऑक्सीडेशन, नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नंबर 2 that is also oxidation of alcohol only, number 3 oxidation of aldehyde, and number 4 oxidation of ketone, all right। This oxidation of alcohol gives acid, second case it gives aldehyde, aldehyde's oxidation gives acid, and ketones oxidation also gives acid, children, is that clear, okay।
ये आपको इक्वेशंस याद रखना होगा. सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल. फर्स्ट में चिल्ड्रन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. एक काम करते हैं, ये तीनों साथ में रखेंगे, है ना. सो ये अल्डिहाइड ले लेते हैं, अल्डिहाइड. ऑलराइट, और ये तीनों एसिड साथ में रखेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल हम अल्डिहाइड में लेंगे. ओके, अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड ऑन इट्स ऑक्सीडेशन. ओके, सो कौन सा इक्वेशन लोगे, या नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले लो. तो अल्कोहल 1 कार्बन एटम वाला OH और एक कार्बन CH3, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन KMnO4. ये आपको याद रखना होगा. एंड इट गिव्स अल्डिहाइड चिल्ड्रन. CH3 है, इट गिव्स अल्डिहाइड. सो CHO इज द फंक्शनल ग्रुप. कार्बन एक ही है, सो आपको तो एक कार्बन हो गया, सो राइट ओनली H. सो दिस इज methanol and this is methanol. All right children. Up second, alcohol gives acid. Alcohol, its oxidation gives acid. Okay, कौन सा एग्जाम्पल लोगे, n इक्वल टू 2 ले लो. n इक्वल टू 2. ओके, अल्कोहल में OH है, कार्बन एटम्स 2, सो C2H5. ऑलराइट, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, इन प्रेजेंस ऑफ वंस अगेन अल्कलाइन KMnO. व्हाट डज इट गिव? यस, ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है. 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ऑर्गेनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, और 2 है, एक ऑलरेडी आ गया तो एक लिखो, और CH3. Okay, this is ethanol, n equal to 2. So you get ethanoic acid. There's no other product, only one. All right. Next, third, क्या है? Aldehyde produces acid. Aldehyde on its oxidation produces acid. All right. कौन सा aldehyde लोगे आप? n equal to 1. ओके, सो यस, अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है CHO. अल्डिहाइड में CHO, और n इक्वल टू 1, तो 1 ऑलरेडी आ गया, सो सिर्फ H लिखना है. उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज कैटलिस्ट. ओके, एंड यू गेट ऑर्गेनिक एसिड. चिल्ड्रन, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, या यू कैन से methanol. Yeah, okay, so it's going to give you formic acid. Acid का फंक्शनल ग्रुप COOH, और एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलरेडी आ गया, सो सिर्फ राइट H. That's it. Okay children, now number 4, ketone getting converted into acid on its oxidation. All right, ketone में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कम से कम 3 लगते हैं, सो दैट इज प्रोपेनॉन. ओके, C डबल बॉन्ड O वाला CO. ओके, अब 3 कार्बन एटम है, सो राइट में एक दे दो विथ 3 हाइड्रोजन. 2 हो गए, एक ही बचा, लेफ्ट में एक दे दो विथ 3 हाइड्रोजन. सो दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन. इज दैट क्लियर? उसको भी अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं. लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा, इसकी वजह से 2 और प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स एसिड तो है ही. 3 कार्बन एटम,
का एक कम हो जाएगा, याद करो एक कम हो जाएगा, तो ओके एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH। ऑलराइट, अब आपके पास 2 कार्बन चाहिए तो एक बचा, राइट। सो व्हाट यू विल गेट CH3। so instead of propanoic acid you are getting butanoic acid, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कम होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, आपको ये याद रखना होगा, ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है कीटोन का ऑक्सीडेशन में। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ व्हाट वी लर्नड, यस रिडक्शन, वी लर्नड अबाउट रिडक्शन, फिफ्थ रिडक्शन, और उसमें क्या पढ़ा, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड gives alcohol, and second reduction of ketone also gives alcohol। all right, चलिए हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल, है ना चिल्ड्रन, एंड कीटोन गिव्स अल्कोहल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। all right, अल्डिहाइड में n इक्वल टू 1, so CHO is the functional group, एक हाइड्रोजन। ऑलराइट, इस बार रिडक्शन हो रहा है, सो प्लस H2 लिखना जरूरी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ऑलराइट, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ऑर्गेनिक एसिड, उसमें यू आर गोइंग टू गेट अल्कोहल, सो OH, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ही है, सो CH3, दैट्स इट। ओके, कीटोन का एग्जाम्पल, ओके उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम से कम 3 लगते ही है, CO, CH3 और CH3। ऑलराइट, और हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं। नाउ दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NaBHO, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट चिल्ड्रन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां C के साथ सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। ऑलराइट, एक H ऊपर, ये CH3 और ये CH3। ऑलराइट, दैट इज 2 प्रोपेनॉल, ये हमने देखा है पहले, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू इन डिटेल। ऑलराइट चिल्ड्रन, ओके, सो ये 5 थिंग्स हमने पढ़ा, और आज हमने पढ़ा, यस 2 मोर थिंग्स, राइट, दिस इज 6th एडिशन एंड दिस इज 7th। सो आज जो पढ़ा मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, जो 5 चीज हमने पहले ही पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन चिल्ड्रन, see you in the next session. Till then, goodbye.